Good morning, my dear student. Today we will continue your class at SST, Chapter 7. Chapter 7, Civilizing the Natives, Educating the Nation. My dear student, this is the very interesting chapter. In this chapter, we have discussed about that education policy of India. And in this chapter, we also discuss about that the conflicts between Orientalists and the Western educators. We have already discussed in my class that what thing about the groups who believed that Oriental education was important for the Indians and one who believed that the Western education for the Indians that is superior. And dear student, we have discussed a lot. And we also discuss about the agenda of national education and the education for commerce and new routines, new rules in education system. My dear student, I have also discussed in my previous class about the education report which was compiled by William Adams. What he discussed about the Indian education policy. Dear student, today we will read the topic English education has enslaved us. This topic is directly belong to the agenda for national education. The agenda for national education, two topics we will read. First, English education has enslaved us, and second topic, Tagore Award of Peace. Dear student, it is I think you are all familiar with the statement of Mr. Gandhi. In my previous class, I have discussed a lot about that the view of Mr. Gandhi. Mr. Gandhi argued that the colonial education created sense of the inferiority in the mind of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride that had their own culture. There was poison in the education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It enslaved Indians. It cast an evil spell on them, charmed by the West. Appreciating everything that came from the West Indians, educated in these institutions, began admire British rule. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. During the national movement, he urged the student to leave educational institutions in order to show the British that Indians were no longer willing to be enslaved. Dear student, this is the clear-cut view of Mr. Gandhi about that the Western education that is totally sinful for Indians. It is just like a poison. Suppose the persons who were trained by the Western schooling system, he had some inferiority complex about their own cultures. They never pay respect their own cultures. और ये चीजें गांधी ने क्लियर बताया. गांधी का पूरा विचार था, गांधी का ऐसा मानना था, गांधी ऐसा कहते थे कि जो ये एजुकेशन पॉलिसी है, जो ये एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है, ये एजुकेशन पॉलिसी कहीं न कहीं भारतीयों के मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरती है. ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसका? ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर से बेटर है, वेस्टर्न कल्चर की सारी चीजें अच्छी हैं. गांधी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सुपीरियर. दे फेल्ड हु ट्रेन्ड बाय द वेस्टर्न स्कूलिंग सिस्टम एंड देयर वाज द पॉइजन इन द एजुकेशन. गांधी ये भी कहते हैं कि ये पॉइजन की तरह है. इट वॉज सिंफुल. इट इनस्लेव इंडियंस. ये पाप पूर्ण है. ये भारतीयों को दास बनाने के लिए ट्रेन की जा रही है. It cast an evil spell on them, charmed by the West, appreciating everything that came from the West.
जो पश्चिम से आता था वो पश्चिम की ही बड़ाई करना शुरू करता था, वेस्ट की ही अच्छाइयों को बताता था, इंडियन कल्चर को वो क्या करता था, हमेशा उसको इग्नोर और डिमोलिश करने का प्रयास करता था। आई मीन टू से दैट इट इज द वेरी कॉमन मैटर दैट सपोज यू आर ट्रेन्ड बाय द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस, हाउ कैन यू इंसल्टेड देम, हाउ कैन यू, क्या करेंगे आप उसकी कैसे बुराई कर सकते हैं? You always admired that institution who trained you, and that happened with those people who trained by British institutions. That's why Mr. Gandhi opposed the Western schooling system. Gandhi felt that suppose a person who trained by them, they insulted their culture, their own cultures. और फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। गांधी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अपने गौरव को, अपनी संस्कृति के गौरव को, अपने कल्चर को और अपने स्वाभिमान को बढ़ाने का प्रयास करे, सम्मान की भावना लाए। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट he urged students to leave educational institutions over the show up to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. Particular national movement times, Gandhi always urged the students that leave the institutions, schools, which was established by the British Empire, because it is totally against your culture, because it is totally against your own traditions. And Gandhi urged him that leave educational system in order to show the British that Indians were no longer willing to be enslaved. गांधी सिंबॉलिक रूप में कह रहे थे कि आपको स्कूल छोड़ देना चाहिए। स्कूल छोड़ने का सिंबल एक सिंबॉलिक रूप में मतलब होगा कि हम अब और आपका दास भविष्य में नहीं बनेंगे। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट द इंडियन लैंग्वेज आर्ट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। गांधी बिलीव दैट इंडियन लैंग्वेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, मदर टंग दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द एवरीवन। सपोज इफ यू आर टॉट इन योर मदर टंग, then I think it would be better for you. It would be the great part to understand. आप आसानी से ही उन बातों को समझ जाएंगे जब आपकी मातृभाषा में कोई चीज पढ़ाई जाएगी। गांधी का विश्वास था कि गांधी स्ट्रांगली फेल्ड दैट इंडियन लैंग्वेज आर टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। एजुकेशन इन इंग्लिश crippled Indians distanced the from their own social surroundings and made them the strangers in their own lands, speaking a foreign tongue, despising the local culture, and English educated did not know how to read their masses. कहते हैं कि यदि आप अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो आप अपने लोगों को जानेंगे, अपनी चीजों को समझेंगे, और यदि आप यही दूसरे की भाषा पढ़ेंगे तो आपको उन चीजों को समझने में दिक्कत होगी। आप अपने लोगों में घुल मिल नहीं सकते, because you have no idea about your own culture. If you are trained by them, if you are trained by the Western culture, and it is totally against for you. The Western education, Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued the textbook rather than lived experience, and the practical knowledge. He argued that education ought to develop a person, mind and social literacy. Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued a textbook rather than lived experience. And what? The practical knowledge. It means Western education, Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbook rather than life experience and practical knowledge.
My dear student, here Gandhi clearly explained that the Indian education system that was based on live experience knowledge. That was not the bookish knowledge. So it is better form for learning. It valued the moral, I mean to say that the oriental knowledge based on the moral values. जो भारतीय शिक्षा पद्धति उसमें नॉलेज के साथ साथ जो नैतिकता के विकास की बात की गई थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन में नहीं दिखाई देता। इसीलिए गांधी हमेशा एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो गांधी का कहना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम थी वो मौखिक ज्ञान की बजाय ओरल जो नॉलेज थी उसके बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। इसमें जो सिलेबस है पाठ्य पुस्तक पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होते हैं, विकसित होने भी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता लिटरेसी यानी पढ़ने और लिखने की जो क्षमता है को प्राप्त कर लेना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा का मतलब क्या होना चाहिए। कहते हैं कि शिक्षा लोगों के हाथों में काम को सिखाए, कुछ हुनर उसको सीखने पड़ते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि व्हाट द गांधी argued that education ought to develop person's mind and soul. Literacy or simply learning to read and write by itself did not count as education. People had to work with their hand, learn a craft and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि एक व्यवस्था है, शिक्षा एक ऐसी चीज है। लिटरेसी क्या है? लिटरेसी का मतलब केवल उनकी राय में गांधी का जो विचार था, उनके विचार में जो साक्षरता है लिटरेसी है, यानी लिटरेसी का मतलब लोगों को पढ़ने और लिखने आता हो। लिटरेसी का मतलब गांधी के अनुसार केवल शिक्षा ही नहीं होती, बल्कि लिटरेसी इसलिए तो लोगों के हाथों में काम करना पड़ता है, लोगों को हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। उनका मस्तिष्क, उनका ब्रेन, यह समझने की क्षमता का विकास ये एजुकेशन सिस्टम करती है। कहते हैं जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारकों ने भी भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात कही और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने के लिए न्यूज़पेपर का सहारा लिया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में इस सोच के कारण एक बदलाव दिखाई देता है। आई एम टेलिंग अबाउट दैट मिस्टर गांधी gave a very important view about Indian education system. According to Gandhi, literacy is not only to able person to read and write. Education means person should be skillful. By itself did not count an evolution. Education, I mean to say that what? कहते हैं कि by itself did not count as education. People have to work with their hands, learn a craft and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. आदि कितनी बड़ी बात कहते हैं कि दिमाग का विकास हो, दिमाग सोचने के लिए हो कि काम कैसे हो रहा है, काम को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, नए तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इन चीजों के बारे में गांधी बात करते हैं और ग्रेजुअली वी हैव सीन दैट सच टाइप ऑफ अवेयरनेस कम इनटू द अदर इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड देयर माइंड। दे फेल्ट दैट, ऑफ कोर्स मिस्टर गांधी what are telling that
is true. Education system, which is implemented by the British rule, that was totally against the Indian custom and culture. And we should change. And these type of view, thoughts influence the imperial education system and policies. आमूलचूल परिवर्तन हुआ, बदलाव हुए एजुकेशन सिस्टम में, कुछ बदला और बहुत सारे विचारकों ने इस बारे में अलग अलग मत दिए। क्या देते हैं, क्या कहते हैं? अब बात करते हैं टैगोर का शांति निकेतन। टैगोर्स अवार्ड बाय, आई मीन टू से द टॉपिक टैगोर अवार्ड ऑफ द पीस। जो टैगोर अपने शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था चलेगी, कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, तो टैगोर उसके लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था, एक नए तरीके की बात करते हैं। आप उसके बारे में देखे होंगे। उनके बारे में बातें करते हुए जब टैगोर कहते हैं कि शांति निकेतन, आप में से बहुत सारे लोग, आई मीन टू से दैट यू आर ऑल अवेयर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिस्टर टैगोर, शांति निकेतन। बहुत सारे लोग शांति निकेतन के बारे में आप सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने की और क्यों की थी? शांति निकेतन क्यों बना था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था, ये इंस्टीट्यूशन 1901 में शुरू की। टैगोर जब छोटे थे, चाइल्डहुड एज में, तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। उनका वहां दम घुटता था, स्कूल उनको डराता था। तो टैगोर ने एक स्कूल के रूप, स्कूल जैसी संस्था के रूप में एक नया विकास किया। स्कूल का माहौल जो उन्हें दमनकारी लगता था, उन्हें फोर्सफुली उनके ऊपर इंपोज किया हुआ लगता था, टैगोर ने क्या किया? उसको बदलने का प्रयास किया। टैगोर को लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि यहां बच्चे अपना मनचाहा कभी नहीं कर पाते, जबकि दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते हैं। तो टैगोर का दिमाग कहीं और लगा रहता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव को शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों ने काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और क्रिएटिव माइंड के बन सके, जहां उनके अपने विचारों, अपनी सोच, अपने को विकास करने में मदद मिले। टैगोर को लगता था कि बचपन का जो समय है अपने आप में ही लर्निंग के लिए है, सीखने के लिए है। इसमें कोई फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें हिंडेंस नहीं लगाया जाए। यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई पूरी एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट थी, जहां पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव डिसिप्लिन, बंधनकारी अनुशासन लगाए गए थे। ये उन सबसे मुक्त करता था। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझे और बच्चों को समझाने में समर्थ हो सके आसानी से। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था का विकास टैगोर ने शांति निकेतन में करने का प्रयास किया। टैगोर के अनुसार शिक्षक कल्पनाशील होना चाहिए, बच्चों को समझते हों शिक्षक, और उनके अंदर की उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में उनको मदद दे, ऐसे शिक्षक होने चाहिए। टैगोर के अनुसार वर्तमान स्कूल बच्चे को रचनाशीलता, चकित होने वाले उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। इट मीन्स टैगोर was much aware about that the education system which was implemented by the imperial rulers. Tagore felt that the new education policies where the discipline, where the proper syllabus, timetable, proper schooling system, these are all not appropriate for the Indian students. Tagore shared their experiences in their childhood. Tagore felt that the schooling system that is totally against the children's freedom. Which type of environment should be in school? According to Tagore, it should be the open, whole scenario that is open. पूरा खुला होना चाहिए, पूरी बातें साफ साफ। टीचर ऐसा हो जो बच्चों को समझे,
बच्चों के अंदर की कल्पनाशीलता का विकास करे, बच्चों के अंदर उन चीजों को समावेश करे जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। और इसीलिए टैगोर ने एक नए प्रकार के विद्यालय की स्थापना की, और ये विद्यालय जो बना, ये स्कूल जो बना टैगोर का, ये शांति निकेतन था। टैगोर ने इस स्कूल में तमाम सारी सुविधाएं देने की बात कही। बच्चा जो चाहे, जिस तरह से चाहे, उस तरीके से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता था। आई मीन टू से दैट टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, no doubt he was the great educationist, philosopher, poet, patriotic person, leader, teacher, painter also. The lot of qualities Tagore had. So that's why they think that the education should be the way एक ऐसी व्यवस्था में एजुकेशन स्टार्ट हो जहां की बच्चों के ऊपर कोई हिंड्रेंस ना हो, बच्चा पूरा चीजों को समझे, उसके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ना भरी जाए। इट मीन्स व्हाट आई मीन टू से दैट कि बच्चा जो सीखना चाहे, बच्चा जो समझना चाहे, वो आसानी से समझ सके, रिस्ट्रिक्शंस ना हो उनके ऊपर कुछ भी। इस तरह के स्कूल की, इस तरह स्कूलिंग सिस्टम की बात टैगोर करते हैं। Rabindranath Tagore started the institution in 1901, that was Santiniketan. As a child, Tagore hated going to school. He found like a prison for could never do what he felt like doing. So while other children listened, the teachers, Tagore's mind would wander away. The experience of the school day in Calcutta shaped Tagore's idea of education. On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, where he could be free and creative, where she or he be able to explore her own thoughts, ideas, view. That childhood ought to be a time of what? Time of the self-learning. Outside the restricting discipline of the schooling system set up by the British teachers had to the imaginatives understand the child and help to child develop her curiosity. The curiosity is the very important things. Curiosity, it means in the mind of the children, there are the various type of curiosity. You want to know everything, that how, when, where, by whom. These words, that is important for their children. That show their curiosity. हर चीज को जानना चाहता है। तो कहते हैं कि चाइल्ड्स डेवलप हर क्यूरियोसिटी। अकॉर्डिंग टू टैगोर, द एक्साइटिंग स्कूल्स किल्ड द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव। हर सेंस ऑफ वंडर, टैगोर वाज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी encouraged only within the natural environment. So he chose to set up the school 100 kilometers away from Calcutta in rural settings. He saw it is an abode of peace, Santiniketan, where living in harmony with nature, children could cultivate the natural creativity. In many sense, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar ways. There were, however, differences too. Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. Tagore wanted to combine elements of the modern Western civilization with what he saw as the best within Indian traditions. He emphasized the need to teach science and technology and Santiniketan along with art, music and dance.
Here, what we are reading about the education system, education ideology of the Mr. Gandhi and Mr. Tagore. Both ideology has some different, थोड़ा सा अंतर है दोनों के विचारों में। गांधी एक तरफ पूरे तरीके से क्या करते हैं, पश्चिमी विचारधारा का पूरा विरोध करते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन प्रणाली को पूरी तरीके से नकार देते हैं, वो मशीन और टेक्नोलॉजी का विरोध करते हैं। लेकिन टैगोर वहीं पे क्या करते हैं, टैगोर का मानना था कि जो जो क्रिएटिविटी है, जो ये मशीनरीज है, जो वेस्टर्न में अच्छी चीजें हैं, उसे भारतीय एजुकेशन सिस्टम में जरूर डालना चाहिए। इसीलिए शांति निकेतन में क्या होता था, इन शांति निकेतन देयर वर व्हाट द टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, आई मीन टू से दैट द एवरी टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इज अवेलेबल इन शांति निकेतन वाज टैगोर. Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the within Indian traditions. He emphasized the need to teach science and technology at Shantiniketan along with art, music and dance. कहते हैं कि बहुत सारे मामलों में कहते हैं कि सीधे सीधे पहली चीज तो आप थोड़ा पहले चलिए कि टैगोर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का सोचते हैं जो खुले में हो, प्रकृति की गोद में हो, कोई बाउंड्री ना हो, कोई गेट ना हो, ओपन माहौल में शिक्षा, जहां बच्चों की सृजनात्मक क्षमता का विकास हो, क्रिएटिविटी पढ़े, उनका माइंड डेवलप करे, स्कूल उनकी क्रिएटिविटी को न रोके। टैगोर का मानना था कि जो ये सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, शिक्षा को केवल प्राकृतिक इन्वायरमेंट में ही क्या कर सकता है, इनकरेज कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूर पर एक रूरल जो एरिया था, एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी हुई दिखाई दी, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया शांति निकेतन। शांति निकेतन का मतलब था कि जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे क्या करें, अपने स्वाभाविक जो क्रिएटिविटी हो उसको डेवलप कर सके। बहुत सारे मामलों में गांधी और टैगोर के जो विचार थे वो कमोबेश एक जैसे राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क ये था कि गांधी जहां पर पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न एजुकेशन की टेक्नोलॉजी, मशीन की पूजा करने के पूर्णतः विरोधी थे, मतलब मशीन मैकेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, क्या गया, इसका विरोध किया गया गांधी के द्वारा। वहीं पे टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा को श्रेष्ठ शक्तियों का सम्मिश्रण चाहते थे। वे चाहते थे कि जो वहां की अच्छी चीजें हैं वो और जो भारत की अच्छी चीजें हैं वो दोनों को एक साथ मिक्स कर दे, मिला दे, और इस तरीके से वैज्ञानिक शिक्षा, इट मीन्स क्या कहते हैं कि टैगोर चाहते थे कि शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स एज लाइक डांस, म्यूजिक, आर्ट। सो दैट्स व्हाई ही एम्फसाइज दैट बोथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डांस, आर्ट एंड म्यूजिक, पेंटिंग्स, both important for the human beings. Both education should be in our school and is our schooling system. इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह से फैलाया जाए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। और इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि क्या किया जाए, जो जिनका ये मत था कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था डेवलप हो। पर ये कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा क्या होती है, राष्ट्रीयता क्या होती है, ये राष्ट्रीय शिक्षा कैसी हो, इस पर डिस्कशन, डिबेट चलते रहे। आई मीन टू से दैट many individuals and thinkers were thus thinking about the way the national educational system could be
fashioned. Some wanted change within the system set up by the British and felt that the system could be extended so as to include the wider sections of the people. Other urged the alternative systems be created so that people were educated into a culture that was truly national. Who was defined what was rural, what was truly national? The debate about what this national education ought to be continued till after independence. And it is very strange matter with us that now the Indian government introduced the new education policy. भारत सरकार ने नई शिक्षा व्यवस्था अभी लॉन्च की है. इसके पहले पुरानी शिक्षा व्यवस्था जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी वही चल रही थी, कमोबेश परिवर्तन के साथ. भारत सरकार ने अभी अभी नई शिक्षा व्यवस्था लागू की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. आपने देखे. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एंड वी डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक. गुड बाय एंड टेक केयर.